Hi guys, welcome back to my channel, or if you're new to this channel, welcome. I know it's been a while since I made my last video, but starting over has been a roller coaster ride, so I'm gonna tell you about it some other day. But today's video is gonna be about my go-to makeup, the makeup that I usually like to do whenever I go out. Not a glam look, because glam look I only do during special occasions or weddings, or maybe going for interviews or with friends for dinner, lunch, etc. But this makeup look is gonna be my usual go-to makeup look. It's like beginner friendly with not so much products, simple steps which you can do easily, and also you can learn some basics of makeup if you are a beginner. So without any further ado, let's start this video. I'm not gonna talk too much. So yeah, okay. Before we start the look, I just want to say that I believe that the most important step in a makeup look is not the makeup itself, but your base, which is your skincare. Because I feel like if your skincare is good, then your makeup tend to last longer, and it doesn't look cakey, or it doesn't break out or something like that. It just gives you a natural glow. And for the base, I'm gonna make another video, a detailed video, where I'll be showing you how to properly apply your skincare and what steps to include in order to achieve that perfect glowy makeup look. I think you're gonna need these kind of clips, or maybe if you can use something else. The first product that I'm gonna go for is this Maybelline Jelly Primer with +2% niacinamide. मैंने ये कहीं पे देखा था और ये थोड़ा सा filter like finish देता है, तो I'm gonna try it. But you can totally skip this primer, बिकॉज आप कोई फुल ग्लैम लुक करने वाले नहीं हो, हाई कवरेज भी नहीं चाहिए होगा, तो यू कैन कम्प्लीटली स्किप द प्राइमर व्हेन यू आर डूइंग लाइक नो मेकअप लुक. बट अगर आपके पोर्स हैं एंड यू वांट टू स्मूदन इट, so you can go for the primer. It will help you achieve that glowy look, plus long lasting makeup, plus not so cakey makeup, also smooth like butter. Okay, तो फर्स्ट स्टेप प्राइमर. वो थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा आता है इसका टेक्सचर. आई डिडंट नो ये प्राइमर थोड़ा सा ऐसा टाइप का निकलेगा, बट लुक एट द डिफरेंस, इट जस्ट ब्लर्स आउट. I'm gonna be using my fingers a lot in this video क्योंकि हम कोई glam look नहीं करने वाले हैं, तो it's easier for me to use my fingers and अच्छे से blend भी हो जाता है. So this is how the primer looks. Primer हो गया done. As you can see, ये थोड़ा सा glow भी दे रहा है और थोड़ा सा blur effect भी दे रहा है, I guess. तो the second step and the second product that I'm gonna use is the foundation. Usually जब मुझे no makeup look करना होता है और मुझे इतना heavy coverage नहीं चाहिए होता है, तो मैं थोड़ा सा ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, या फिर BB क्रीम, या फिर आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होगा. You don't want that full glam look. तो इसके लिए यूजुअली हाई कवरेज के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है, बट क्योंकि हम नो मेकअप लुक कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके प्रोडक्ट को मिनिमल यूज़ करें. पी साइज. आप भी अगर आपके पास BB क्रीम है, या फिर कंसीलर है, या फिर आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं. आई लाइक टू अप्लाई जहाँ पे थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन है, लाइक under eyes, and distribute evenly throughout your area. यहाँ पे जो pigmented है area, वहाँ पे forehead. I'm just using the pea size amount that I took from the foundation. Like I said, I'm gonna be using my fingers a lot today because that's easier for me.
यूजुअली मैं इसको बहुत फास्ट करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, बट क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना है तो यू नो आई एम अप्लाइंग इट थोड़ा सा केयरफुली एंड जस्ट ब्लेंड इट विद योर फिंगर्स. क्योंकि ये फिंगर्स थोड़ा सा हल्का होता है तो यू नो इट्स ईजियर टू ब्लेंड और हार्श भी नहीं होता है. तो क्योंकि आपने अभी फाउंडेशन स्प्रेड कर दिया है, नाउ यू कैन ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर. हमेशा अपने एक्चुअल स्किन शेड से 2 शेड लाइटर लेना चाहिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो थोड़ा सा ग्रेइश टोन देते हैं बाद में. तो इट्स बेटर टू गो फॉर a little bit lighter shade than your usual skin tone. Let's do this for fun. Okay, so foundation भी done, base भी done मेरा. अब आप ये स्किप कर सकते हैं अगर आपके थिक आईब्राउज हैं और यू नो शेप में हैं, बट मुझे लगता है कि आईब्राउज आपके मेकअप लुक को थोड़ा एलिवेट कर देता है. सो आई लाइक टू डू इट. यूजुअली मैं बहुत टाइम लेके करती हूँ क्योंकि उसको फिल करना होता है, फिर मैं कंसीलर लगाती हूँ, फिर आउटलाइन ये वगैरह करते हुए टाइम लग जाता है. बट फॉर माई गो टू मेकअप लुक आई एम जस्ट गonna यूज़ अ लिटिल बिट आउटलाइन, अ लिटिल बिट. मुझे लगता है कि यू नो जस्ट इट enhances your overall look. So the product that I'm gonna use is this, don't judge me, this very old L'Oreal Maximalist का palette, जो कि you won't believe but I'm using since past 4 years I think, क्योंकि ये इंडिगो में हमें सजेस्ट करते थे. और देखिए जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश कर दिया है. This is my favorite palette for my eyebrows because it exactly matches my shade of my eyebrows. So अब मुझे नया मंगवाना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत आउट ऑफ स्टॉक होता है, सो अभी तक मुझे मिला नहीं. लेट्स यूज़ द लेफ्ट ओवर. तो what you're gonna do is just आउटलाइन हल्के हाथों से अपने जो आईब्राउज के लाइन है उस पे थोड़ा सा आउटलाइन कीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं, डार्क नहीं करना है क्योंकि आपको नो मेकअप चाहिए. तो इस लुक के लिए मैं ज़्यादा प्रॉपरली नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत ही डार्क हो जाएगा और बहुत ऑड दिखेगा अगर रेस्ट ऑफ द मेकअप के साथ मैच नहीं करूँगी. तो जस्ट फिल योर आईब्रोज ऐसे, जहाँ पे भी खाली खाली लग रहा है वो सारे फिल कीजिए. या इतना परफेक्टली नहीं किया बट आई थिंक दैट वर्क्स. गाइज एज यू कैन सी मैंने ज़्यादा फिल नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा. ग्लैम लुक के लिए मैं थोड़ा और डीपर और डार्कर चाहती हूँ और कंसीलर वगैरह लगा के परफेक्ट शेप में लाती हूँ. बट इस लुक के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे ऐसा लगे कि आपने मेकअप किया हुआ है. अब कौन सा स्टेप था मैं भूल गई हूँ, तो आई थिंक 4th, क्योंकि हाँ इसके बाद हम अपने आई लैशेस को कर्ल कर देंगे. But since my eyelashes are already curled, so I'm not gonna do. So after you're done curling your lash, you can use any mascara of your choice, जो भी आपको सूट करता है. This is my favorite mascara, which is sadly not from India. It's from Korea, and it's not available in India yet. So yes, you can use
any other mascara जो भी आपको सूट करता हो, और yeah, which can last longer. And then ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि फिर it defeats the purpose कि हम no makeup look कर रहे हैं. As you can see, इतना भी dramatic eyes नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा ही ऐसे हाईलाइट किया जैसा लग रहा है. ओके, डन. सो ये दोनों करने से भी आपको चलेगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और थोड़ा सा लिप बाम लगा सकते हो, बट थोड़ा और ऐड करते हैं. इसके बाद आई वुड लाइक टू यूज़ द 5th और 6th प्रोडक्ट. आई नो इसमें थोड़ा उल्टा आएगा, सो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है. हम थोड़ा सा ही अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे लाएंगे. यूजुअली हम यहाँ पे हाइलाइटर भी लगा सकते हैं इसके साथ. ये आपके फेस को थोड़ा सा लिफ्टेड कर देता है यहाँ पे लगाने से, और थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए. और जो बचा है वो जस्ट स्माइल एंड अप्लाई हियर और हियर. सी, आपको कोई ब्रश की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ योर फिंगर्स. As you can see the difference इसमें और इसमें ज़्यादा नहीं है, but still you can just see the difference कि ये थोड़ा सा lifted लग रहा है. अब हम इसको भी lifted करेंगे. थोड़ा सा blend it. ऐसे. और जो बचा है, smile and apply it on your cheekbones, nose bridge. अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. And also guys, since I'm not a fan of matte makeup, so I like my makeup when it, you know, gives you that glow. तो उसके लिए I'm adding another product जो कि it's a blush. बेसिकली इसका नाम ग्लो बाम है, बट आई यूज़ इट एज अ ब्लश टॉपर जब मुझे थोड़ा सा वो ग्लॉसी टाइप का लुक चाहिए होता है. तो अगेन इसका टेक्सचर, एंड आई लाइक टू अप्लाई जहाँ पे मैंने ब्लश लगाया. थोड़ा ज़्यादा हो गया लगता है, कोई बात नहीं, हम उसको हटा सकते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंस्टेंट ग्लो देता है. इट्स अ मस्ट इन माई मेकअप. सॉरी गाइस, आप ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे ग्लो वाले मेकअप ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा शिमरी आई शेडो यूज़ करूँगी. इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये, जो कि मैंने ऑलमोस्ट यूज़ करके ख़त्म भी कर दिया है. इसका ये यूजुअली मैं ये और ये शेड ज़्यादा यूज़ करती हूँ मिक्स करके. अगेन आई एम गोना अप्लाई विथ माय फिंगर. तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर आप अपने हाथों से स्मच कीजिए ऑल ओवर योर आईज. इफ़ यू वांट थोड़ा सा और ग्लो, तो आप इधर 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 भी ऐसे लगा सकते हैं. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस आँख में इस आँख में, बट अगर आप सामने से देखोगे थोड़ा सा और. ट्रस्ट मी गाइस, इट्स गोना लुक रियली गुड जब आप बाहर निकलोगे. अभी भले ही बहुत ही ऐसे शाइनी लग रहा होगा, ये ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है. तो little bit here and left over here.
So far so good. गाइस जल्दबाजी में मैं अपने लोअर लैश पे मस्कारा लगाना भूल गई, तो लोअर लैश के लिए मैं इतना थिक मस्कारा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ही अजीब लगता है. सो आई एम गोना यूज़ दिस, ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, स्काई हाई मस्कारा फ्रॉम आई थिंक मेबेलिन. नीचे मैं थोड़ा सा लाइट मस्कारा यूज़ करती हूँ वरना बहुत ही अजीब लगता है. अगेन इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ नो मेकअप लुक अगर आप ज़्यादा लगाओगे. वी आर ऑलमोस्ट डन. ओके, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे. द आई थिंक सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट इज़ दिस के ब्यूटी का लिप लाइनर. हल्का बहुत वाहियात लाइन किया आज मैंने, बहुत चलता है. जैसा कि मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा मैट कोई भी चीज़, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट मैट में नहीं पसंद है, इवन लिपस्टिक. सो सिंस वी आर डूइंग नो मेकअप लुक, आई एम गोना गो फॉर दिस हाइफन का लिप बाम, जो कि वायटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड लिप बाम है, हेज़ल शेड. No lipstick, only lip balm. और जिनके फुलर लिप्स होते हैं उस पर ये वाला शेड बहुत अच्छा लगता है. जो बचा है आप स्मच कर दो फिर यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड्रेटेड है ना, तो थोड़ा और ग्लो दे देगा. सो मेरे कोई भी मेकअप लुक में, कोई भी मेकअप रूटीन, चाहे वो ग्लैम लुक हो, ओवर ड्रामेटिक, नॉर्मल या फिर नो मेकअप लुक हो, मैं ये वाला स्टेप कभी स्किप नहीं करती क्योंकि आई रियली लाइक ग्लोवी मेकअप एंड आई वांट टू लुक हाइड्रेटेड. सो दिस इज़ अ मिस्ट जिसका नाम पूरा हट गया है. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी. आई विल एंड माई मेकअप रूटीन विद दिस मिस्ट एंड लेट इट ड्राई. और यस, इस वाले जो मिस्ट में इसमें SPF भी है, सो इट्स अ विन विन. इफ़ यू आर अ फैन ऑफ मैट मेकअप देन आपको इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मेकअप फिक्सर की ज़रूरत होगी. फाइनली गाइस, आई एम डन विथ माई गो टू मेकअप लुक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई एम गोना शो यू क्लोजअप से कैसा लग रहा है. सी, एज यू कैन सी द ग्लो. यूजुअली आई प्रिफ़र कि मैं सिर्फ स्किन केयर के साथ ही जाऊँ, लेकिन कभी कभी आई लुक रियली सिक और मे बी टायर्ड बिकॉज माई आईज आर पफी और स्किन भी इतना हाइड्रेट नहीं हुआ होता है. सो आई लाइक टू डू नो मेकअप लुक. सो दिस इज़ माई गो टू मेकअप रूटीन, जो मैं जल्दी हो जाता है. वैसे मैंने आपको बहुत टाइम लेके दिखाया है, लेकिन यूजुअली मैं बहुत फास्ट करती हूँ. एंड ऑल आई यूज़ इज़ माई फिंगर्स एंड द प्रोडक्ट्स, द मिनिमल प्रोडक्ट्स दैट आई शोड यू. तो एंड में मैं अपना मेकअप रूटीन मिस से ख़त्म करती हूँ ताकि मुझे वो ग्लोई लुक मिले, विच आई रियली लव. It's not too much makeup, but it's minimal, and I hope you like this video. And in my next videos, upcoming videos, I'm gonna show you how to do your base correctly, and also if you want a full glam makeup look, I can do that for you as well. Please share your feedbacks and any suggestions that you have in the comment section. It's a beginner friendly makeup. आप अपने चॉइस का कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको मेरा ही स्टेप फॉलो करना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई एम साइनिंग ऑफ. बाय बाय.